Some of the world. Feeling good? Yes. Awesome. Okay. Go first time in commerce. Please raise your hands. Great. I don't know how many times I have been here. So I would like to thank everyone, and I wish you all, and I would warm welcome to Goa. Thanks to Mr. Suresh sir and team, and Mr. Sanjeev Sharma sir and team, my partner, and Mr. Ike sir and team, and all. And I would like to thank Raspata DC sir who have created this great opportunity for us, especially for Indian. If you see in past 20 years before, there was no any opportunity for Indian to create any. You can see your father, grandmother, or grandfather, like the way they have didn't get any opportunity. They were used to do their family work, like farmers, yeah, anything, carpenters, barber, or like that. They were, but today in India, you can see that people are educating themselves and getting so many opportunities around them. They are creating. If you see that Ola company, Uber, they are created by Indian. How many of you know about the history of Ola? That Ankit Sharma, I think. Ankit Sharma? No, Gupta, not Gupta. Someone has created. So he was working in Microsoft for 2 lakh rupees per month as salary, and he has refused, and he resigned his job and started Ola, and he went to the market and promoted his company himself. Today is one of the great and one of the biggest company in the world, I think. Like that, the KFC also started the same, and the McDonald's and so many things. So we'll discuss so many things to clear today. And I would like to thank Respect Anurag sir, who's managing us, who is guiding us, and I learned so many things from him. One of the, we are speaking about soft skills, but I have learned it from him. How big problem we are saying to him and how he handles us very softly. I only, Sanjay sir knows that, and I too know that. Simply has solving the so many problems happening surrounding us. Since past 13 years, I seeing so many problems that occurred to our company, to me, and so many people. He simply solved it. It is nothing. The problem is the part of like that. So I'm proud to him, and please, I would like to ask a great clap for him. Okay. आज मैं भी थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ. बोलता हूँ. ठीक है? ठीक है सर, ठीक है. Actually, I would like to ask Tamil Nadu team to learn Hindi also, okay? Yes sir, yes sir. I don't know what's having Hindi, but since my grandfather was a freedom fighter. He was serving in Indian National Army. He was used to train in Singapore, Burma, like that places. He was 20 years old. He joined Indian Army, not Indian Army, Indian National Army, Subhash Chandra Bose Army, to 1945, before independence. Actually उस समय मेरा दादाजी का 40 उम्र था 20 उम्र था, लेकिन उन्होंने नहीं गया था, उन्हें जबरदस्त लेके गया. जैसे हमें जबरदस्त ड्यू शॉट दिया ना, उसी तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने मेरा दादाजी को जबरदस्त पकड़ के उन्होंने किडनैप करके लेके चला गया था. आफ्टर दैट दे टीच देशभक्ति सिखाया उनको, और उन्होंने तो आजादी के लिए लड़ा और आजादी मिला. फिर इंडियन नेशनल आर्मी तो कांग्रेस वाले ने रिजेक्ट कर दिया. फिर तो हमारा इंडियन आर्मी अभी जो चल रहा है वो तो अंग्रेजी बनाया हुआ आर्मी है, और इंडियन आर्मी उसका नाम हो गया. उसके बाद मेरा पापा 1980 ये आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज 10th. उस समय तो 5 पास किया तो बहुत बड़ा एजुकेशन होता था. 1980s में मेरा फादर वाज 10th फेल. तो बहुत बड़ा एजुकेशन था. आई थिंक इट इज सर ने पढ़ा था 1998 के बाद. 98 में ऑलमोस्ट 10th फेल और फर्स्ट वाज सेलेक्टेड फॉर इंडियन आर्मी. आई थिंक I was joined in 2002. मैं हाइट कम था, वेट कम था. आई वाज लुकिंग वेरी यंग.
बहुत छोटा था, लेकिन मेरा मेरा साथ वाले लोग 17-16 उम्र में चला गया था लेटर लेके। मैं फादर आर्मी में था, तो मैंने भी माय ड्रीम फॉर टू बिकम आर्मी। आई वाज स्टडीड इन आर्मी स्कूल, आई वाज स्टडीड इन मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी in Tamil Nadu. Actually, teachers used to ask one question: what do you want to become? The frontline students said, I want to become a doctor, I want to become an engineer. Some people say, I want to become a pilot, like that. I don't know how many have achieved that. Some people, one or two people have achieved. But in my classes, 15 students were used to say, we want to become Indian Army soldier. Almost 11 have achieved that. Before me, 3 or 4 have achieved. So many my colleagues were are now JCOs. They are almost Subedar, Nak Subedar, Havaldars, almost like that. If I would have service in the army now, I would be JCO like that. Okay, I will get 3-6 model. Okay. So after I completed my +2, my father asked me to join in engineering. I don't know what the use of engineer. I told to my father that I want to become a soldier. So I went to Hyderabad. There are 2 training center of our artillery. You know, artillery is the god of war. Artillery is the god of war. If the अगर हमारे हिंदुस्तान का जब पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ वार होता है ना, तब आर्टिलरी के पता चलता है आर्टिलरी। तब तक क्या होता है ना, द कोर वाले को सबसे बड़ी इज्जत होता है। छोटे छोटे काम पे क्या होता है, जैसे एएलसी हो गया, ईएमआई हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, और सो मेनी थिंग्स। इनका ना एक्चुअली दे आर सपोर्टर्स, बट दे आर रेस्पेक्टिव इन आर्मी, बट वी आर फाइटर्स, वी आर फाइटिंग आमने सामने, कुत्तम बोलता ना, लड़ाई। तो मैं जब ट्रेनिंग किया था, वो लिखा होता था आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर। आई वाज नॉट प्राउड अबाउट इट। मी आई डिडंट नो I came to know that Indian army is one. After I know Indian army is not one there. The infantry is there, armored is there, artillery is there. Almost I don't know how many different companies are there to fight for or support us there. So मैं आर्टिलरी में मौका मिला। इसमें एक कोइंसिडेंस है, मेरा दादाजी भी ड्राइवर था इंडियन आर्मी का, जो गन ट्रक चलाने वाला, गनर ड्राइवर बोलते हैं। सर को पता है, आई थिंक सर वाज ऑपरेटर। एडी का, ओके एडी इज ऑपरेटर नाउ, इट्स ट्रेनिंग सेंटर इन ओडिशा समवेयर है ना, ओके। और मेरा पापा भी आर्मी का ड्राइवर था, और मुझे भी ड्राइवर नहीं मिला। मेरे पापा ने बोला यू आर एजुकेटेड सो यू कैन गेट ए क्लर्क और सम। मैं बोला क्लर्क में क्या होता है? क्लर्क में कंप्यूटर में काम करना होता है। और गनर में क्या होता है? मैं बोला उसमें लड़ाई करना पड़ता है। मैं क्लर्क का काम नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई करना है। एक्चुअली मैं जाके सिलेक्शन में बैठा हूँ। सिलेक्शन में बैठते समय बोला यार तूने अंग्रेजी पढ़ाई किया तो आपको क्लर्क में जाना चाहिए, मेरे पापा ने बोला। मैंने वहां पर लाइन में बैठा था। आपको पता है वहां पर लाइन होता है कि उसमें क्लर्क का अलग होता है और जीडी का अलग होता है, ट्रेडमेंट्स का अलग होता है। तो वो वहां बैठा था। मैंने मेरा पापा बोला कि तुम वहां बैठो तो क्लर्क में जाएगा। क्लर्क में क्या काम है? तो कुछ एडवेंचर है उसमें, थ्रिलिंग है? नहीं, वो बैठ के टाइपिंग करना पड़ता है और ऑफिस में बैठ के। नहीं वो काम नहीं चाहिए मुझे, बंदूक चलाना काम चाहिए, बंदूक चलाने वाला काम। सो मैंने वहां जाकर उधर से उठ के जीडी में बैठ गया। मुझे जीडी चाहिए, तो मैंने जीडी में ज्वाइन हो गया। फिर आई वाज स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। आई वाज अ चैंपियन इन एवरी, कबड्डी, खो, क्रिकेट, फुटबॉल, ऑल ओवर चैंपियन था स्कूल में। तो कम से कम मुझे पता नहीं 1500 पीपल्स वर रन टुगेदर फॉर इंडियन आर्मी सिलेक्शंस। आई वाज द फर्स्ट। हैदराबाद ग्राउंड में मैं फर्स्ट आया था उस समय। तो फर्स्ट आया था, फर्स्ट आने के बाद मैं सिलेक्शन हो गया। इट वाज वेरी इजी फॉर मी। वहां पे क्वेश्चंस बड़ा अजीब से पूछा जाता था। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। उसमें गिर फॉरेस्ट कहाँ है और शुगर कैन कहाँ ज्यादा ये होता है, ग्रो होता है, और सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, मुझे याद है अभी भी। और यूपी का ये अपना कैपिटल क्या है, और इंडिया का सुप्रीम कमांडर कौन है, और इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन है, क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया,
like that questions are asked and say something about Nehru ji, say about Gandhi ji. आज तक यही सवाल चल रहा है इंडिया में. तो ये सवाल था. I was passed and I selected in Indian Army in 2002 and I was trained in Hyderabad. फिर मेरा पोस्टिंग हुआ था जम्मू कश्मीर. फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू कश्मीर ड्रिलिंग. जो मैं चाहता था वही हुआ. वो कहानी आप लोगों को सुना होगा. लास्ट जो मैं ऑनलाइन मीटिंग हुआ था उस समय यू कैन सी सर का यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है. यू कैन सी दैट सो मेनी थिंग्स आर हैपेंड विद मी व्हाइल आई एम गोइंग टू कश्मीर. वो कश्मीर जा रहा था मैं. मेरा दादी जी का डेथ हुआ था. फिर वहाँ जाने के बाद मेरा छुट्टी मांगा था, दिया नहीं. 6 महीने आई वाज यूज्ड टू सर्विसिंग इन बॉर्डर. उस समय मैं आतंकवादी के साथ भी लड़ाई किया हूँ, भागा हूँ. लोग पूछता था डर नहीं है क्या, ये नहीं है वो नहीं है. आई डोंट नो. हाँ, मुझे मिशन था इंडियन आर्मी में आना, तो फिर वही मिशन कंप्लीट करना है. फिर मेरा पोस्टिंग हैदराबाद में हुआ था. तो मेरा एक्टिव देख के उनको एक जेसीओ था हमारा, उनको अच्छा लगा कि यार तुम कुछ कर रहा है तो व्हाट यू वांट टू बिकम. बोला अभी तो सोल्जर हो गया, मेरा और क्या करना है, पेंशन जाना. नहीं आपको कुछ करना है. उन्होंने बोला एक दिन आपको कुछ करना है. मुझे कई लोग बैठा था. The so many people were sitting around me, but he chose me. Only me. He chose me. Ravi, please get up. Come on. What's your qualification? He said I was just completed +2. +2. Do you have certificate? Xerox I have. I have submitted to Nasik. Nasik में था मेरा. सर बोल रहा था ना, नासिक में मेरा रिकॉर्ड में था. तो मेरे पास जेरॉक्स कॉपी था. तो चेक चलो आपको आज रात को उन्होंने देखा थोड़ा अच्छा एजुकेशन था, तो चलो आज को आपको जाना है एसएसबी करने के लिए. इवन आई डिडंट नो व्हाट वाज एसएसबी. कितना बड़ा मौका. आज भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशन एग्जाम वही होता है. एक इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, सिविल सर्विस का. और सर को पता है आर्मी का तीनों का होता है. जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट आर्मी ओनली. नेवी और एयरफोर्स ये तीनों जो सेना का बड़ा एजुकेशन एग्जाम होता है एसएसबी. एक आईएन, एक नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी का एक आईएन एसीसी होता है. मैं एसीसी में गया था. आई वॉज पास्ड एंड आई वॉज क्लियर्ड. बट मुझे अभी मैं ड्यूसॉफ्ट में एंट्री हो रहा हूँ. ड्यूसॉफ्ट का वैल्यू उस समय मुझे नहीं पता. ड्यूसॉफ्ट नहीं था उस समय. एक्चुअली मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मुझे हिंदी नहीं आता था. ये दो इंडिया में ये इंटरव्यू सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश. आई बॉर्न इन तमिलनाडु, बॉर्न अप इन तमिलनाडु. मुझे तो ज्यादा देर हिंदी तो मैं जानता था लेकिन इतना बोल नहीं पाता था. इंटरव्यू का वो प्रिपरेशन नहीं था मेरे अंदर. और आई वॉज ड्रॉप्ड आउट सिंपली. 34 बोर्ड इलाहाबाद, अभी प्रयागराज हो गया वो. वहां पे बस कटा था, उनसे चलो रिजेक्टेड था. एक दिन में रिजेक्ट हो गया. आके रेलवे स्टेशन में बैठ गया. फिर लाइफ कितना बड़ा सपना. जो ड्यूसॉफ्ट में तो हम सोचते हैं कि आज चलो एक प्लान नहीं होता कल कर लेंगे, लेकिन उसमें तो गया. Once gone is gone. तो मैं कुछ लोग था मेरे साथ, तो हम लोग बिल्कुल बात बंद. तो जब आ रहे हैं हैदराबाद पहुंच गया. एवरीथिंग वाज लाफिंग एट मी. यार ये जवान का आपको पता था जवान का क्या होता है अलग. नो वन वाज मोटिवेटिंग अस. चलो अगले बार हो जाएगा. नहीं बोला. तुम तो बड़ा सपना देख रहा था, तुम्हारा सोच तो ये था, तो ऐसे था वैसे था. मतलब they were demotivating me. उस समय पता चला कि आज जो हमारा साथ वाला कितना पॉजिटिव सोचता है. देयर वाज एक भी ऐसा नहीं था कि जो कोई बोला मैं घास काट रहा था, मेरा पीएचएम आके बोला तो इसका भी लायक नहीं है. तुम घास काटने के लिए भी लायक नहीं है. और आपका सपना ऑफिसर बनने का. एक जेसी आया, अरे यार तुम ऑफिसर बन गया होता तो मैं तुझे सैल्यूट मार देता है. तुम तो अभी वही जवान पे, तुम तो मुझे सैल्यूट मारना पड़ेगा अभी. मतलब दे आर डीमोटिवेटिंग. नॉट ओनली डीमोटिवेटिंग, दे आर ब्लेमिंग मी. फिर मैंने पोस्टिंग उस समय बस हो गया. फिर और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास. देयर वाज नो एनी ऑप्शंस फॉर सोल्जर्स. आई वांट टू बी कंटिन्यू एज ए सोल्जर. तो मैं कंटिन्यू किया. मेरा पोस्टिंग 2007 दिसंबर में कश्मीर. दोबारा कश्मीर मतलब पहले मैं राजौरी में था. इस समय श्रीनगर से आगे हमारा 13-14 फीट हाइट वो जो कुपवारा
ठेकेदार के पास पोस्टिंग हो गया था, बर्फ गिरा हुआ, माइनस डिग्री, माइनस 12, 13, 15, 20, 30 30 minus. So I don't know how many of you can understand this. माइनस डिग्री, इवन वहां पे कोई बिजली नहीं, वहां पे टीवी नहीं, वहां पे खाना नहीं, वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं, वहां पे फोन नहीं, वहां पे कोई दुकान नहीं, वहां पे नो लेडीज और यू कांट। कम से कम 2 साल चला इसे, 2 साल। इसका इसमें मुझे गिफ्ट क्या मिला कि मुझे 2 साल बर्फ में रहा, तो यहां से लेके पूरा पेट तक पूरा करा। बर्फ का पानी पीने से, वहां पे बर्फ का पानी में कोई मिनरल्स नहीं होता है, क्योंकि बर्फ का पानी सीधा ऊपर से गिरता है, वो बर्फ ही रहता है, उसका गर्म करना पड़ता है। बर्फ कितना गोरा होता है ना, जो कितना व्हाइट होता है ना, उसका सफेद होता है ना, उसको पानी गर्म करने के बाद उतना काला होता है वो। ये टीथ मतलब पूरा हमारा काला हो जाता है, पूरा टीथ काला, और वो पानी पीने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका सिर्फ प्यास बुझ सकता है, लेकिन वो पानी जाके हजम नहीं करता खाने को और खराब कर देता, क्योंकि वो पानी में कोई मिनरल्स ही नहीं है, क्योंकि वो बर्फ की पानी है। वो पानी, असली पानी जो वो मिट्टी से आता है, नीचे से आता है, वो पानी में दम होता है, ये पानी में दम नहीं होता है। ये अंडरस्टैंड करना, आज वो आप लोगों को इंडियन आर्मी का फैक्ट बता रहा हूं मैं, तो तब जाके आप, हम जो कर रहे हैं ना काम, इट इज वेरी इजी काम, मेरे लिए मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग काम किया था इंडियन आर्मी में, वेरी हार्ड, और कोई अजम नहीं होता था खाना हमारा, और खाना भी प्रिजर्वेटेड खाना, प्याज भी प्रिजर्वेटेड, मसाला प्रिजर्वेटेड, एवरीथिंग प्रिजर्वेटेड, सुबह से लेके रात तक प्रिजर्वेटेड खाना। 2 साल खाने से पेट क्या होगा? अगर हम 2 दिन 4 दिन हम होटल में खाने से क्या फर्क पड़ता है आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस? मुझे पता है, लेकिन हम वहां पे 2 साल खाने के बाद पूरा प्रॉब्लम, मेरा वेट कम हो गया। आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक, मैं बहुत बॉडी बिल्डर था और मेरा वेट कम हो गया। मैं रिपोर्ट करने लगा, मैं झगड़ा करने लगा, यार ये हालत खराब हो रहा है, चलो मुझे छुट्टी भेजो, ये वो। उन्होंने भी झगड़ा में थोड़ा लड़ाई किया तो उन्होंने मुझे पोस्टिंग भेज दिया। आर्मी में क्या होता पता, तो ज्यादा कुछ करने से, ज्यादा होशियार बनने से, तो यहाँ लायक नहीं है, तो यहाँ लायक नहीं है, यू आर ट्रांसफर्ड। तो उन्होंने अच्छा काम किया। एक कर्नाटक का एक ऑफिसर था, उन्होंने एक हवलदार के साथ में बहुत मुझे ये हो गया था, तो उन्होंने मुझे पोस्टिंग कर दिया पंजाब, जालंधर पंजाब एविएशन, आर्मी एविएशन में मुझे पोस्टिंग हो गया था। और भी बदल दिया, हाँ आर्ट नहीं है, तेरा पता नहीं। तो वहां गया मैंने, वहां जाने के बाद मुझे पता चला आर्मी एविएशन क्या होता है। उस समय आर्मी एविएशन में मुझे याद नहीं, मतलब उतना नॉलेज नहीं था। 11 कोर था, 11 कोर पहुंच गया मैंने। पहुंचने के बाद वहां पे भगवान से एक प्रार्थना किया था, आगे मैं इंडियन आर्मी में नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे जाने के बाद बीपीटी होता है। 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर वजन का साथ भागना पड़ता है। मेरा यहाँ पैर है ना, ये पैर, मैं इंडियन आर्मी में इतना बड़ा रनर था, स्पोर्ट्स स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पैर मेरा खराब हो गया, मुझे चल नहीं पा रहा था। ऑलमोस्ट आई वॉज जस्ट कंप्लीट 2 किलोमीटर। उसके बाद मैं जीप में बैठ गया, जिंदगी में पहली बार जीप में बैठ गया, मुझे बहुत मतलब फील हो गया था। आई वॉज फील अशेम्ड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे फिजिकल चाहिए। तो वहाँ आने के बाद मुझे टेंशन हो गया था, तो मुझे मैं छुट्टी चला गया था। उसके बाद छुट्टी जाने के बाद मुझे एक दोस्त था आर्मी, फ्रेंड हुआ, एवरीवन वाज आर्मी सेलेक्ट, दे आर इन आर्टिलरी ओनली। मैं एक फ्रेंड था वो तिरुपति, उसका से बात किया था मैं, उन्होंने बोला यार चलो मंदिर चलते हैं। उस समय तो भगवान के पास में नहीं जाता था ज्यादा देर। हमारा इंडियन आर्मी में हर सोमवार को, मंगलवार को वो मंदिर भी होता है, शाम को 6-7 बजे, वो जबरदस्त बैठ के करना पड़ता है। आज मंगलवार है, हनुमान का वार है करके वो बोलते यार कब टाइम होगा, खाने के लिए चलते हैं, क्या ये ड्रामा चल रहा है। तो ये हालत था हमारा। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम हुआ ना, तो भगवान के ऊपर विश्वास आने लगा मुझे। पहले बार जिंदगी में भगवान के साथ बैठ के बात किया मैंने, भगवान मैं इंडियन आर्मी में सर्विस नहीं कर सकता, मेरा फिजिकल वाज डैमेज, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू सम अदर अपॉर्चुनिटी। तो भगवान से मैं प्रार्थना किया, पता नहीं भगवान ने सुन लिया। तो मैं दोबारा ये आने के बाद मुझे एक मौका मिला था, डीआर मतलब फ्री, गाड़ी लेके कहीं भी घूमो अपना मर्जी, जितना पेट्रोल डालो, आर्मी का पेट्रोल है, गाड़ी आर्मी का है, और आर्मी में हूँ, और घूमना कहीं भी। पहले बार बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाने के बाद ये न्यू शॉट वालों ने पकड़ लिया मुझे।
ये ड्यू शॉट वालों ने पकड़ के मुझे एक दो बंदा आ रहा है, एक तमिलनाडु का, एक केरला का, एक कुछ हिंदी वाला भी था। एक बहुत अच्छा मौका है, 2 बजे आ जाओ। मैं बोला LIC है क्या बजाज अलायंस नहीं, एजुकेशन ऑनलाइन का, आ जाओ। बोला अरे बताओ ना अभी क्या है। 2 बजे आ जाओ, आपका लाइफस्टाइल मिलेगा, वो देखना। कार आर्मी में हमारे पास 500 का साइकिल था, आर्मी ऑफिसर के पास कार होता था, कोई वेरना कार, बड़ा छोटा छोटा कार, ये स्विफ्ट डिजायर, ये सब कार आर्मी में होता था। तो वहां पे सारे कार 20-30 कार खड़ा है, क्यों कौन है वो, बहुत बड़े बड़े आता है, बड़े बड़े ब्रिगेड्स आता है, उनका कार वगैरह खड़ा। उन्होंने बोला ये कार से देखा आपने, ये कार जैसे इनका लाइफ स्टाइल से आप इनके जैसे जी सकता है। मैं बोला यार ये सब ट्राई हो गया मेरा, ये सब मेरा ट्राई हो गया, मैं ट्राई कर लिया, इससे भी ऊपर आपको मौका है। बोला क्या हो सकता है, कुछ तो है, चलते हैं। फिर मैंने प्लान सुना, दोपहर को गया था, मैं गया था, उन्होंने फिर फोन नहीं किया, मैं गया था, दरवाजे का 2 बजे, वो जो क्लर्क का 2 बजे सोने का आदत था, वहाँ पे एक क्लर्क था, एक राजेश PS, उन्होंने मुझे प्लान किया था। फिर मैं 3 एडमिशन से शुरुआत किया था, ये प्लान देखे इंस्पायर हो गया, आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि एजुकेशन था। और इंडियन आर्मी में बाद में, पहले मेरे पापा ने बोला क्लर्क में जाओ, क्योंकि बाद में मैंने चूज किया था GD का, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद पता चला क्लर्क का वैल्यू क्या है। फिर मैंने उनको कंप्यूटर वगैरह सीखने से थोड़ा हम आगे कुछ कर सकते हैं, तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए दूसरा में ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे किसी से मिलने का दिक्कत था। मुझे सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है, आर्मी वालों या कुछ बड़ा, हम कुछ ज्यादा पढ़ाई कर लिया, आई एम ज्यादा डबल डिग्री हो गया मेरा, या कुछ हो गया ना, हम इंसान से मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता हमारा, हमें राइट। ज्यादा एजुकेटेड पीपल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, सीधा बात है। वो बहाना बनाएगा यार ये ऐसे है, ये नहीं चलता है, ये सब झूठ है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, उन लोग किसी के जाके यार ये मौका है बोलने का बहुत बड़ा हिचकिचाहट होता है कि उनको बोल नहीं पाते हैं। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी आल्सो। आई इंडियन आर्मी सोल्जर, 7-8 साल सर्विस हो गया, प्रमोशन का देख रहे हैं अभी, लेकिन मुझे भी दिक्कत था कि किसी से जाके मिलने का, बोलने का, ये सब मुझे थोड़ा दिक्कत था। मेरा अपने ने बोलता था रवि तुम ये अचीव कर दो, तुम इतना एडमिशन करेंगे तो लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन मिलना तो है ही नहीं। इंडियन आर्मी में रनर था, और इसका बात करूं तो हमारा AK-47 दे दो या इंसाफ दे दो या कुछ भी दे दो मेरे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ यही शूट करता था। अभी भी मेरा शूटिंग यही होता है। इतना मैं क्रैकर शूटर था कि मेरा ऑफिसर के साथ भी मुकाबला होता था AK-47 से, तो मेरा शूट एकदम जाता था कि लास्ट में वो मेरे साथ कोई जीत नहीं पाता है। तो ऐसे शूटर था मैं, रनर था, सब कुछ था, लेकिन मुझे ड्यू सॉफ्ट करने में बड़ा दिक्कत था मुझे, क्योंकि ये लोगों से मिलने का काम क्या होता है, मार्केटिंग, ये सब मुझे नहीं आता था उस समय। मेरा प्रॉब्लम हो गया था, मेरा पेट का प्रॉब्लम था। मैं वावरान सर इंडियन आर्मी का सोल्जर था, सर का जैसे लेवल था, एम्बेसडर लेवल था, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दे रहा था। ही वाज ट्रेनिंग मी इन जलंधर में एक जगह पे ऐसे ट्रेनिंग चल रहा था। मैं थोड़ा बार बार उठ के जा रहा था, तो उस समय एक डॉक्टर था वहां पे। अरे यार आप बार बार क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा पेट प्रॉब्लम है, मुझे पेट में प्रॉब्लम है यार, चलो बाद में मुझे मिलना। आई डिडंट नो ही वाज अ डॉक्टर, मुझे वो डॉक्टर पता नहीं था, लेकिन बाद में उसे मिला, उसने मुझे मेडिसिन दिया था। उसने मेडिसिन 150 रुपए में दिया था शुरू में, बाद में वो मेडिसिन देते वो मेडिसिन का 4000-5000 हो गया था हफ्ते का। लेकिन मेरा पेमेंट 7200। इंडियन आर्मी में पेमेंट कितना? 7200। इनोवेल सर पता, हमारा 2009 में हमारा पेमेंट 7200 तब बढ़ा था, उससे पहले 3200 था। 2009 तक 3200 था बेसिक पे, मैं बेसिक पे का बात कर रहा हूँ। फिर मैं हमारा पेमेंट था 7200 था, तो मेरा बाकी मिला के सब मिला के जो एक्सपीरियंस का जो पेमेंट वगैरह 10200 क्रेडिट होता था सर। तो ये घर का भी देना है, सारे मुझे भी खर्चा चाहिए, तो ये काम नहीं हो सकता ना। तो मैं थोड़ा लेकिन मुझे नहीं
पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए था। उसमें पहले बार मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा चाहिए मुझे। कांटेक्ट करने के लिए मैं उस समय क्या होता हम एटीएम में जाके पैसा, एटीएम उसमें एसबीआई का एटीएम होता था जलंधर में, मैं एटीएम में खड़ा हूँ। मेरा पहले कांटेक्ट बताता मैं कैसे किया। कांटेक्ट इनवाइट, मैं मार्केट में खड़ा हूँ जलंधर में, पंजाब में मार्केट में खड़ा हूँ। एक बंदा वो भी आर्टिलरी का है लेकिन टी शर्ट पहन के थोड़ा नॉर्मल पहन के वो आगे खड़ा है, वो ऐसे जा रहा था। मेरा सामने एटीएम में चला गया, हम दोनों एटीएम में घुस गया। वो लड़का मेरे पीछे घूमा, सर एटीएम, मेरा हाथ में एटीएम दे दिया। तो बोला क्या सर पैसा निकाल दे। मैं बोला पैसा निकालना नहीं आता? बोला सर नहीं। और कितना निकालना है? सर 40 निकालना है, 40,000 निकालना है। तो उतना ही निकाल सकता उसमें। मैं वो लड़का से बोला यार तुम एटीएम से पैसा नहीं निकालना नहीं आया? बोला नहीं। तुम कल फंस जाएगा कहीं तो फिर क्या करूं मैं? वो बोला यार इसके लिए कोर्स है, इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा आपको। बोला कहाँ? चलो ये मेरे पास रहने दो, चलो मेरे साथ साइकिल में बैठो। उसको मैं लेकर गया प्लान करने। तो उस समय हमारा प्लान में क्या था? प्लान में होता था एटीएम में पैसा, एटीएम कैसे काम करते हैं और एक सुई से लेके चार्ज से कैसे बढ़ाते हैं, ये सारा एनसाइक्लोपीडिया इसमें सीख सकते हैं। वो लड़का एटीएम, उसको पैसा निकालना नहीं आता था ना, उसको मैंने इतना मोटिवेट कर दिया कि तुझे एटीएम भी सिखा देंगे, एटीएम में पैसा निकालना आपको सिखा देंगे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा सर? प्लान पूरा सुनने के बाद आपको 7 आईडी करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 7 आईडी। सर मैं, उसने बोला 7 आईडी कितना पैसा लगता है? उस समय 7,000 था, 46,000 कुछ आता था। सर अभी तो मेरा इसमें 40 है और 6,000 क्या करेंगे? सर दूसरा एटीएम है उसमें भी है। तो उसने क्या किया, दोनों एटीएम में मैंने ले लिया उससे, फिर लेके गया उसको मैं। फिर मेरा गुजरात का वल्लभ था इनका ऑफलाइन, उनको बुला लिया। यार ये मुझे पहले बस संभालना नहीं आता था, मुझे क्या करना मुझे पता नहीं था। और उसको फोन किया, यार एक मतलब 7 आईडी पैसा तेरा जल्दी आ जाओ। फिर हम दोनों गया, उसको बोला पिन बोलो, तो पैसा निकाला उसको 46,000 उसको निकाला। फिर 7 आईडी डाला, 7 आईडी डालने को उस समय मुझे कम से कम पेमेंट आया था। तो मुझे पता चल गया कि काम कैसे होता है। मुझे पता चल गया काम कैसे होता है। फिर मैंने क्या किया कि उसी नेक्स्ट वीक मेरे पास बाइक था और मैंने जहां भी जाता था ना, एक्साइट में सबको एक मौका है, ये पढ़ाई करने का काम, मतलब पैसा कमाने का मौका है। नेक्स्ट वीक मैंने हो ही नहीं सकता था मेरे साथ, मैं अनबिलीवेबल, मैंने 23 एडमिशन निकाला था नेक्स्ट वीक। उसके बाद मैंने 23 एडमिशन निकाला था। उसके बाद मैंने उस समय वहां पे प्रिविलेज बन गया था और मेरा पेमेंट भी आया था कम से कम 20-30 हजार तक मेरा हफ्ते का पेमेंट आया। तो मुझे दिमाग खराब हो गया था कि यार यहाँ 10,000 महीने का, 10,000 महीने का, हर हफ्ते का 20-30 हजार। वहां पे ट्रेनिंग देता था हमारा वो, ये मैं थोड़ा क्लियरली बताता हूं। मैं मुझे ट्रेनिंग में अपना बाबराजन सर आया था। ये वाज द पी ऑफ ब्रिगेडियर, ईएमए का जो पीए होता है वो ब्रिगेडियर होता है, उनका पीए था। तो वहां पे हमारा बहुत वैल्यू होता था, उनको बड़ा इंसान ट्रेनिंग करने आ रहा है हमें आज। तो मैं ट्रेनिंग में चला गया था। उनका उस समय 25 ईयर्स सर्विस था सर, 25 ईयर्स, आई वॉज जस्ट 9 ईयर्स सर्विस। और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करते समय कुछ दिखाया था, ये देखो ये हमारा अत्री क्रिएशन है, ये हमारा अत्री क्रिएशन है। इनका पेमेंट है उस समय का 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख पर वीक। और वी आर अर्निंग इन इंडियन आर्मी 10,300 rupees per month, 10,000 rupees 300 per month for 30 days. And our Atri creation is earning 1.5 lakh per 7 days and is paying tax 15,555 rupees almost। और मेरा पेमेंट से डबल वो टैक्स ही पे कर रहा है। और मैंने बोला रविचंद्र देखो मेरा 25 साल सर्विस हो गया, तुम भी यही करेगा तो तुम्हारा हालत भी यही होगा। क्योंकि मैंने बोला सर ये तो मैं जानता हूँ, मेरे पापा का मैं देखता हूँ ना। मेरा पापा 25 साल से और सूबेदार से रिटायर्ड है और मेरे दादाजी को मैं देखा हूँ और मैं सब जानता हूँ सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मेरा पापा आता समय 10 लाख रहकर आया था, मेरे सिस्टर का शादी में भी पूरा नहीं हुआ था और पैसा आज भी वो
उधार में है आज भी, और मेरा लाइफ को कुछ करना है सर, तो ये आपको ड्यूस ऑफ करो यार। देखो आपको 1.5 लाख रुपए हफ्ते में कमा सकता है, महीना का 6 लाख रुपए कमा सकता आपने। तो मैंने उनको बोला सर फिर तो मैं फुल टाइम करता हूँ मैं। उन्होंने बोला ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जल्दी नहीं सर मुझे फुल टाइम करना ही करना, मुझे फुल टाइम करना है। मैं जब तक यहाँ पे जो एविएशन में रहूंगा उसके बाद मैं VRS दे दूंगा। उन्होंने यार ऐसा मत करना, फिर भी मैंने डिसीजन लिया। वहां से मुझे पता चल गया, क्यों पता है, उस समय मैं 9 ईयर सर्विस से मैं कितना पैसा कमाया होगा इंडियन आर्मी में। अगर पैसा का बात करूं तो आई एम प्राउड टू बी इंडियन आर्मी सोल्जर, बट पैसा का बात करूं, मेरे फैमिली का बात करूं, मेरे फैमिली का जो लाइफस्टाइल का बात करूं, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स में मैं 5 लाख भी पूरा नहीं हुआ मेरा, 5 ईयर्स नहीं पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे महीने के 6 लाख, और मुझे भी पता चल गया कि मैं हफ्ते में 20-30 लाख 1000 रुपए कमाने लगा मैंने। फिर मैंने डिसीजन लिया फुल टाइम का, फुल टाइम लिया मैंने, फुल डिसीजन। फुल टाइम लेने के बाद कितना प्रॉब्लम होता है मुझे पता चला कि घर में सब कोई बात नहीं किया था। मेरा पापा घर से बाहर निकाल दिया था मुझे, तुम घर में नहीं रहना, अगर ड्यूटी ऑफ करना तो घर में नहीं रहना, अगर इंडियन आर्मी में है तो करो। फिर मैंने वहां से आने के बाद मैं इंडियन आर्मी में छोड़ने के बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया था, वो भी पार्ट टाइम में एक्चुअली बैंगलोर यूनिवर्सिटी। तो 1 साल मुझे मुश्किल था। तो 1 साल के बाद मैंने डिप्लोमेट कंप्लीट किया, कार लिया, फिर मेरा गांव में एक कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने। उसके बाद मैंने 2017 में MD सर आया था, उस समय मैं कम से कम 2017 नवंबर 18 को मैं बालाजी मंदिर में था। उस समय मुझे मैसेज आया कि मैं कोरोना एम्बेसडर बना था, ऑलमोस्ट मैं 70 लाख से ज्यादा पैसा कमा लिया था। और मैंने 2016, 17 और 17, 18 में मेरा इनकम था 90 लाख। 90 लाख। जो 2009 से लेके 2015 तक मैं कम से कम 10-15 लाख कम कमाया था, और 2 इयर्स में 90 लाख। और ये कोरोना टाइम्स इधर से लेके कम से कम 90 लाख से ज्यादा पैसा मैं कमा चुका। कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा काम किया, सबसे लीडर्स बना, 30 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर्स हमारा। और यहाँ पे जो टीम आई है ना, ये मेरा एक टीम है, ये इसी तरफ 10 टीम और पड़ा वहां पे। तमिलनाडु में काम चल रहा है आज, ट्रेनिंग चल रहा है। यू कैन सी द मीटिंग ट्रेनिंग ग्रुप में देखेंगे तो पता चलेगा तमिलनाडु का कितना टीम है। ये द टीम ऑफ ओनली मिस्टर सुरेश सर टीम है, ये सुरेश सर टीम टीम। और हरि सर का टीम है, शक्ति सर का टीम है, प्रेम सर का टीम है, कनरा सर का टीम है। देयर आर सो मेनी टीम्स आर देयर। और हरि सर का टीम, कार्तिक सर टीम अलग है। सो ये आई डोंट नो हाउ मेनी लेग्स आर गोइंग देयर अंडर मी, सो आई एम प्राउड। और 2017 में मुझे 2011 में मैं इंडियन ऐसा अपना दिल्ली में ट्रेनिंग, तलकुतरा स्टेडियम में ट्रेनिंग था। तो हम क्या होता है, इंडियन आर्मी सोल्जर कहीं भी है ना, थोड़ा ऐसे चलता है। तो मैं सोल्जर था, तो वहां जा रहा था, एक बंदा ने मुझे रुका, सर हाँ क्या वहाँ सर आपका लेवल क्या पूछूं? मैं बोला उस समय स्टार ऐसे प्रीमियर लेवल कुछ था। मैं सर प्रीमियर कुछ था। मैं नहीं सर वो डिप्लोमेट बैठने की जगह आप नहीं बैठ सकता। बोला ऐसा मैं सोल्जर हूँ। सर कोई बात नहीं सर, सोल्जर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ नहीं बैठ सकता, वो वहाँ डिप्लोमेट्स बैठेंगे, रॉयल्टी होल्डर्स नहीं वो बैठेंगे। मुझे थोड़ा ऐसे ये फील हो गया था कि यहाँ वहाँ बैठने का क्या लेवल चाहिए। तो ये लेवल के ऊपर थोड़ा मैं एक कमिटमेंट हो गया था मुझे। और मैं नेक्स्ट टाइम हर साल 2012 में डिप्लोमेट, 13 एम्बेसडर, 15 स्टार एम्बेसडर, 17 क्राउन एम्बेसडर तो कंप्लीट किया मैंने हर साल। गोइंग टू फोटो फ्लैश ऐसे ज्वेल फ्लैश हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ हिंदी में। और ट्रेनिंग, सर ने बोला नो ट्रेनिंग, इंडियन आर्मी में सोल्जर हूँ मैं, ट्रेनिंग का वैल्यू मुझे पता है। अगर मैंने सही ट्रेनिंग नहीं किया होता ना, वो बर्फ में काम नहीं होता हमारा, एक दिन में हम हो जाता है।
ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है। ट्रेनिंग का वैल्यू क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट महाभारत? महाभारत के बारे में कितना लोग जानते हैं यहाँ पे? महाभारत, अर्जुन, भीम, विभीषण, जैसे बोलते हैं ना। अभी तो हमारा कलर्स में भी आता है, लॉर्ड कृष्णा। इसका महाभारत इज द टू एपिक्स ऑफ इंडिया, रामायण एंड महाभारत। ओके, ये ट्रेनिंग, वही ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसे इंडियन आर्मी सोल्जर में ड्यूसॉफ का ट्रेनिंग आज तक दिल्ली का, ये फुल टाइम आके मैं 10 साल हो गया, मेरा 10-11 साल हो गया था, ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट करने। ये 10 इयर्स में दिल्ली का कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार मिस नहीं किया मैंने, मिस नहीं किया। इसका कारण मैं बताता हूँ, महाभारत में सबसे हीरो कौन है? महाभारत का हीरो कौन है? ऑफ कोर्स अर्जुन। क्यों अर्जुन? इसका कारण मैं बताता हूं। अर्जुन का मेंटर कौन था? नहीं, उसके बाद में था। पहले कौन था? ईयरली व्हेन ही वाज स्टूडेंट, द्रोणाचार्य was a teacher. One day द्रोणाचार्य was sleeping at midnight था। द्रोणाचार्य सो रहा था। द्रोणाचार्य पर एक आवाज आ रहा है, तीर बोलता है ना, हैरो, तीर चलाने वाला आवाज आ रहा है उनको, तीर चलाने वाला आवाज आ रहा है। अरे रात को कौन तीर चला रहा है? ये क्या आवाज है? वो उठ के जा रहा है। एक लड़का रात को तीर प्रैक्टिस कर रहा है, एक लड़का रात को प्रैक्टिस कर रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, यार तुम ये नहीं कर सकता, आपको कौन राइट दिया रात को आके ये प्रैक्टिस करने का, तीर चलाने का? किसी को ऊपर लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब उसको डांट रहा है। लेकिन अर्जुन ने एक सवाल पूछा द्रोणाचार्य से, सवाल पूछा कि गुरु माफी चाहता हूं आपसे, आपने मुझे सिखाया, लेकिन आपने दिन में सिखाया, आपने मुझे दिन में सिखाया कि कैसे तीर चलाया जाता है, ये सब मैंने सीख लिया, लेकिन दुश्मन रात को आ गया तो? इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि दुश्मन रात को आ गया तो रात को उसको मारना पड़ेगा ना, तो रात को मारने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसको गुरु ने वो सिखाई नहीं, लेकिन वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लीडर, दैट इज व्हाई ही बिकेम द हीरो ऑफ महाभारत। अर्जुन ने महाभारत का हीरो बना था। लेकिन फिर भी मैं और एक कहानी बताता हूं महाभारत का आपको। अर्जुन का वाइफ, क्या नाम था उसका? द्रौपदी तो है, लेकिन दूसरा एक सुमित्रा, हम सुमित्रा बोलते हैं तमिल में, ठीक है, सुमित्रा बोलते हैं। सुमित्रा वाइफ थी अर्जुन का, उसका शादी हो गया था। उस समय वो कम से कम 8-9 महीने का प्रेग्नेंट थी, सुमित्रा प्रेग्नेंट थी। अर्जुन को पता है, सॉरी कृष्ण को पता है, ये अभी कृष्ण आ रहा सर कृष्ण को पता है आगे क्या होने वाला। You know about the future, present, past. You know everything. He is a god. He is leading the Pandavas. You know everything. उस समय सुमित्रा को बुलाया, बैठाया, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुमित्रा को बोले कहानी सुनाता हूँ। अभी घर में क्या होता है ना, जब भैया कहानी सुनाता ना तो भाई क्या करते हैं, मतलब ये बोलते सिस्टर, वो नहीं सुनता नहीं ना। अरे भैया कोई काम नहीं है आपको यही वही वहां हुआ था। उस समय सुमित्रा को ये बैठाया, जबरदस्त बैठा दिया, बैठा के उसको कहानी सुना रहा है कि एक्चुअली ट्रेनिंग दे रहा है बच्चे को, जो पेट में बच्चा है ना उसको ट्रेनिंग करा रहा है। अर्जुन ने ट्रेनिंग करा रहा है कि इतना साल के बाद ये होने वाला है, वहां पे चक्रव्यूह में जाके कैसे फाइट करना है।
जैसे आपके साथ कई लाखों करोड़ों हो गए, उनको बीच में अकेला आके कैसे फाइट करना है, सारे ट्रेनिंग वो दे रहा है। सुमित्रा सोच रहा है कि भैया मुझे बोल रहा है, लेकिन कृष्ण को पता है किसको बोल रहा है वो। कृष्ण किसको बोल रहा है? बच्चे को बोल रहा है। बच्चे अंदर सुन रहा है। अचानक क्या हुआ, चक्रव्यूह में कैसे जाना, कैसे फाइट करना, ये सारे कहानी बोल दिया कृष्ण भगवान ने। बीच में जाके सुमित्रा को क्या आ गया? नींद आ गया। बोला भैया बस करो, भैया बस करो, बस आपका कहानी बस कल करेंगे। सर कृष्ण को बोला कि भैया बस करो, कल कहानी हम सुनेंगे, अभी मैं जाके सोता हूं, मुझे नींद आ रहा है। कृष्ण भगवान ने बोला उसको नहीं पूरा सुन के जाना, पूरा सुन के जाना। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उठ के जाके दरवाजा बंद, सो गया। उसके बाद कभी मौका मिला ही नहीं। उसके बाद कभी मौका मिला नहीं था। उसके बाद लड़का बड़ा हो गया, उसका भी शादी हो गया। फिर जब इसका अपना गौरव के साथ लड़ाई शुरू हो गया था दोनों का, जब चक्रव्यूह को वो ट्रेनिंग चल रहा, मतलब वो असली वो फाइट चल रहा है, वो अंदर जा रहा है, बहुत अच्छा फाइटिंग कर रहा है। सब सोच रहा कि दुर्योधन सोच रहा है, कर्ण सोच रहा है, सारा सोच रहा है यार ये सबको खत्म कर देंगे। लेकिन जिस जगह पे सुमित्रा ने बस भैया को बोला ना, कृष्ण को बस बोला, उसी जगह पे आके वो लड़का का क्या हो गया? बंद हो गया, सब बंद हो गया। जैसे जो ना सीख के, मैं तो हूं एडवोकेट, मैं तो इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं, फील्ड में जाने के बाद लोग बोलेंगे ये तो फ्रॉड वाला काम है। हमारा दिमाग क्या होता है? बंद हो जाता है ये ना, ये तो मेरे पास पैसा नहीं है, दिमाग बंद हो जाता हमारा। सर ये तो नहीं चलता है, ये बंदा मैं जोड़ नहीं सकता। ये सारे क्वेश्चन पूछते पूछते हमारा दिमाग बंद हो जाए। उसी तरह जब ट्रेनिंग नहीं लिया था, देखो कृष्ण भगवान कितना पनिशमेंट दे रहा है खुद का फैमिली को। और वो लड़का जाके वहां पे उसका दिमाग बंद हो गया। उसके बाद उसका ट्रेनिंग जितना वो सुना था, उसके बाद वो नहीं था, उसका माँ ने उसको मना कर दिया था, ट्रेनिंग नहीं लिया था। उसी जगह पे उसको करने क्या किया? मार दिया। करने वहां पे मार दिया। दिस इज द थिंग हैपन विद अस आल्सो व्हेन वी डोंट टेक ट्रेनिंग एंड गो टू फील्ड विदाउट ट्रेनिंग। अगर आप बिना ट्रेनिंग का फील्ड में चाहते हो तो आपकी हालत यही होगा। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया है, हमने 3 कार लिया है, 2 घर बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया हूं और 30 से ज्यादा रॉयल्टी ऑर्डर्स, इतना टीम को संभाल रहा हूं। तो इट इज नॉट फॉर एनी कोइंसिडेंस, और इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो ट्रेनिंग हुआ था अपना एमडी सर का, अनिमल सर का, मैं बताता हूँ किस का ट्रेनिंग लिया था मैंने। लुबाना सर का ट्रेनिंग लिया था मैं, हमारा अपलाइन बाजवा सर था उस समय, और सबसे अच्छा ट्रेनिंग बोलूंगा तो मैं रणविजय सर का ट्रेनिंग लिया था मैं 2011 में, और कुमार मनीष सर का, प्रशांत सिंह सर का, चिंटू सर का, इनका ट्रेनिंग मेरा लाइफ चेंज किया था। अरे ट्रेनिंग में क्या करता था पता? मैं जाकर दिल्ली, मुझे सर जानता है, एक बार हम दिल्ली तलकोतर स्टेडियम में कहीं भी बैठ गया तो शाम तक उठता नहीं था। ऐसा आदत, कभी जगह हम कभी जब टॉयलेट बाहर निकलते ना, लोग चाय पी के घूम जाते, बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते। अरे यार जो तो ये तो जोड़ने वाला काम है ना, हम कर लेंगे। पीपल थिंक्स वेरी इजी, लेकिन हमने सीरियसली लिया था, ये वेरी सीरियसली लिया था, तो हमारा काम हो गया था। फिर हम 2017 हमारा एमडी सर तमिलनाडु आया था। आई वॉज अ स्मॉल लीडर अंडर माई लीड 2017 जनवरी 22 को तमिलनाडु आया था। मैंने सर को बताया था कि सर मैं थोड़ा एक बड़ा सपना है मेरा। क्या सर? मैं बड़ा कार ले रहा हूँ, वो उसका कीमत 22 लाख का कार है, ऑटोमेटिक है, स्पोर्ट्स है, एक्सयूवी कार ले रहा हूँ।
और मेरा डेट के साथ वो सपना लिखा हुआ था, मैं वो पूरा भी हुआ। उसके बाद एमडी सर ने मुझे मौका दिया कि यार एक स्टार एम्बेसडर लीडर साउथ का और इतना बड़ा कार लिया, तो मुझे दिल्ली में तलकोतरा स्टेडियम में चीफ स्पीकर था उस 2017 का, और मैं 2 अवार्ड विनर था उस समय। 2000 मैं बोला था ना 2017 और 18-19 के बीच में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया था सिर्फ विद इन 700 डेज में। 700 डेज में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया था मैंने। एवरी वीक मस्ट कैप अगेन इट्स गोइंग टू हैपन विद इन few months it's going to happen again. Cap you can see the photos on okay. So उस समय मैं अचीव किया था दिल्ली में एमडी सर ने मुझे मौका दिया था 1 आवर बोलने का। सब पहले बार जिंदगी में हिंदी में मैं क्या बोला मुझे भी पता नहीं था। इतना बड़ा स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम में मैं 1 आवर स्पीच दिया था, और ग्रेट इन माय लाइफ, एंड इट इज अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माय लाइफ थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट। सो ये ड्यूसॉफ्ट में लास्ट में मैं बोलने से पहले वाइंड अप करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, द पीपल हु आर केम हियर फॉर एंजॉयमेंट। मैं गोवा में लास्ट टाइम 10 डेज रहा हूँ, अभी 1 वीक। एंड वन मोर थिंग, मेरा अगस्त तक गोवा डेट बुकड है, क्योंकि हर टीम के साथ मुझे आना पड़ता है, क्योंकि मैं पता नहीं ड्यूसॉफ्ट में इतना कुछ हो गया कि मैं हर हफ्ता हर महीना यहाँ पे रहता हूँ। लास्ट मई में मैं था यहाँ पे, फिर जुलाई में आ गया मैं, फिर अगस्त में फिर बुक हो गया हमारा 100+ टीम का, इससे बड़ा टीम 100+ टीम का बुकिंग हो गया। ये तो चलते रहेगा हमारा। तो इसका कारण क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ ड्यूसॉफ्ट में करना क्या है, मैं क्या किया हूँ मैं बता देता हूँ। बेसिकली ड्यूसॉफ्ट में हम एक बेसिक काम करते हैं। बेसिक काम क्या होता है कि सबसे पहले हमें द फर्स्ट बेसिक इज लिस्ट बिल्डिंग। क्या? लिस्ट बिल्डिंग में क्या होता है? फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग में ये डाउट्स एंड क्वेश्चंस। एक काम करने से पहले हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? डाउट। इसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग तो मैं बोल दिया, और ट्रेनिंग का उधर इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएंगे, तो आगे आपको ट्रेनिंग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओके, डाउट्स एंड क्वेश्चंस। अभी डाउट्स के बारे में बताते हैं। डाउट्स रख के हम काम कर सकते हैं। ओपनली बोलता हूं मैं, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग से लेके बहुत नेगेटिविटी है कि नहीं? बहुत नेगेटिविटी है। लेकिन हम ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं, 22 साल से हम ड्यूसॉफ्ट चल रहा है। इट इज अ सीनियर कंपनी इन आवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। यू कैन सी ऑलमोस्ट इट इज वन ऑफ द सीनियर कंपनी। वी आर ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्चुअली आजकल जो भी कंपनी में जो भी बड़े बड़े नेटवर्क है सारे यहाँ से ट्रेंड है सब हमारे बच्चे हैं, ड्यूसॉफ्ट के बच्चे हैं सारे, जो वहां जाकर कुछ भी नाचेंगे करे, कुछ भी हो यहाँ से सीखे गए उन्होंने। ठीक है, तो उनको देखे एक्साइट होने की जरूरत नहीं है हमें। They are just born in Dewsofts. So doubts and questions. हम जैसे कि अभी कोई शादी करना चाहते हैं, शादी करना, कोई लड़की देखने आ रहा है, कोई या लड़का देखने जा रहे हो, तो शादी से पहले अगर आपको डाउट आ जाता तो शादी हो सकता है? शादी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर शादी हो भी आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या चल नहीं पाएंगे। सेम थिंग इन बिजनेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आराम से बैठ के अपना अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर कर लेना। सर मुझे ये डाउट है, ये क्लियर करके आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, बोलते ना, अगर मेरे पास ये बोतल पानी है, ये बोतल पूरा पानी है, इसमें मैं 1 ड्रॉप पॉइजन मिला देता हूं, 1 ही ड्रॉप।
1 लीटर वाटर में ओनली फ्यू ml मतलब फ्यू ml 1 ml भी नहीं है, 0.1 ml मिला देता हूं मैं, ओनली 0.1 ml पॉइजन मिला देता हूं। कितने लोग पिएंगे इसको? एनीबॉडी हैव? नहीं पी सकते ना? उसी तरह अगर डाउट है तो आप काम नहीं कर सकते, आप फील्ड में जाके काम नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम शुड बी Emotional. ड्रीम शुड बी Emotional. इमोशनल। ड्रीम्स के बारे में थोड़ा मैं डिटेली बोलता था, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। ड्रीम्स क्या होता है मैं बताता हूं। 1955 में एक लड़का का शादी हो रहा है, लव मैरिज। एक लड़का का शादी हो रहा है स्कॉटलैंड में। कौन सी कंट्री में? स्कॉटलैंड। He was an employee of some company. I don't know which company. He was an employee of some company and he was active employee of that company. उन्होंने क्या किया? 1955 में शादी हो गया, वाइफ का बर्थडे आ रहा है, शादी होके 1-2 महीना में वाइफ को बर्थडे आ रहा है। तो इन्हें लव मैरिज किया था ना, तो वाइफ से बहुत प्यार करता था। तो उन्होंने वाइफ को एक गिफ्ट करना चाहता था। क्या गिफ्ट पता? डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना चाहता था। उसने से कुछ 5 साल नौकरी करके कुछ सेविंग करके रखा, पैसा कुछ सेविंग करके रखा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि एक्चुअली वाइफ का बर्थडे था संडे, वहां पे सैटरडे संडे लीव होता है और बैंक भी उस समय कोई एटीएम नहीं था। उन्होंने भूल गया था पैसा लेने में, काम पे बिजी था, तो शनिवार को ऑफ डे था बैंक। जाते जाते बैंक बंद हो गया, उसके पास पैसा निकाले, पैसा है लेकिन उसके पास विड्रॉ करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बहुत फील किया, मैनेजर से बात किया। मैनेजर ने बोला टाइम हो गया तो पैसा नहीं दे सकता, बैंक का रूल है, वी कांट क्रॉस द रूल ऑफ बैंक, तो हम ये नहीं कर सकता। उन्होंने शाम तक लड़ा, पैसा नहीं मिला उसको। कम से कम जो में जो पैसा था वही था। वाइफ को फर्स्ट बर्थडे है, शादी के बाद कुछ गिफ्ट करना चाहता था और कमिटमेंट था। वाइफ ने भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन किया होगा ना, तो मेरा पति शादी हुआ है, कुछ करेगा मेरे लिए, ये सब उसको सोचता। बंदा मोरा डाउन हो गया उसका, जाके सिर दर्द हो रहा है, चलो एक चाय पीते हैं। एक चाय का दुकान में गया, उन्होंने एक कॉफी ऑर्डर किया, कॉफी पी रहा था बैठ के, कॉफी पी रहा था। उसका सामने एक लड़का भाग के आ रहा है, आके उसको $1 पैसा डाला उसने एक मशीन में, चॉकलेट आ गया। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, $1 पैसा डाला उसने मशीन में, चॉकलेट आ गया। उसको लेके वो खुशी से भाग गया। ये कॉफी पी के भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? पैसा डाल रहा है, चॉकलेट आ गया। दूसरा बंदा आ रहा है, बच्चा आके पैसा डाला, बिस्किट आ गया, उसको ले लिया, उसने भी भाग गया। इसने कॉफी पी के भाग देख रहा है उसको। फिर तीसरा बंदा आ रहा है, डाला डॉलर मनी डाला, तो जूस आ गया, जूस बॉटल आ गया, तो लेके जा रहा है। इसको सोच आ गया, यार अगर मेरा चेक देते हैं तो मुझे पैसा आने वाला मशीन होता तो कैसे होता है? वो ड्रीम देख रहा है उसका। अगर मैं कुछ मेरा उस चेक होता है ना, तो चेक में दे दूं, उसमें एटीएम कार्ड तो नहीं था, एटीएम कार्ड तो बहुत एडवांस है अभी। अगर मैं चेक दूं, मैं चेक डालूं तो मुझे पैसा आ जाएगा। मशीन पैसा देना तो उसको पैसा का ध्यान है। मतलब जब हम भूख लगता तो हम चांद को देखते कैसे लगता है, या चपाती देने लगेगा, इसी तरह उसको जो भी देखते पैसा की उसको लगा, अगर पैसा मिल जाएगा तो मैं मेरा वाइफ का गिफ्ट कर सकता हूँ। पैसा 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 पैसा, दिमाग में पैसा ही चल रहा है उसका। उसने सोचा कि मैं ऐसे एक मशीन बना हूं जो पैसा कभी भी दे सकता है। उसने एक ड्रीम देख रहा है। उसने वाइफ का मतलब उसको बर्थडे नहीं बनाया, उसने जैसे नॉर्मल केक कटिंग किया और विश किया। मंडे जाके सबसे पहले उसको जॉब का रिजाइन किया। उसने जॉब का रिजाइन किया। जॉब का रिजाइन करने के बाद उसने जाके बैंक में चेक दिया, उसको जो 5-10 लाख पैसा था उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद सीधा गया उसने
ये चॉकलेट का मशीन को खरीदा। क्या किया उसने? चॉकलेट का मशीन को खरीदा था। चॉकलेट मशीन को खरीद के जगह घर में लेकर गया। वाइफ ने बोला क्या कर रहे हो? मैं जॉब को रिजाइन कर दिया और मैं कुछ कर रहा हूं, मैं ऐसा एक काम कर रहा हूं कि मैं आगे पैसा देने वाला मशीन बना रहा हूं। वाइफ ने बोला पागल हो गया ये, आगे इसके साथ तो हम नहीं रहना है। उसको वाइफ उसको छोड़ गया, चला भी गया, चला गया। उसने 5 साल बैठ के एक मशीन बना के उसने वर्ल्ड बैंक को मैसेज दिया कि मैं ऐसा एक मशीन बनाया हूं जो वो पैसा देगा, वो पैसा देंगे। अगर आप एटीएम कार्ड डालेंगे या आप चेक देंगे या अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसमें पैसा देने वाला मशीन। उसने अपना वर्ल्ड बैंक ने देखा तो उसको अप्रूव हो गया। एक ही दिन में वो मतलब बहुत बड़ा करोड़पति बन गया था। आज हम जहां भी जब एटीएम में पैसा निकालता है ना, जहां पैसा निकलता उसको एटीएम 1960 में अप्रूव हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने बनाया उसको अप्रूव दिया था। आज मिस्टर जॉन था स्कॉटलैंड का, उसको एक सपना था, सपना इमोशनल था, उसने सपना के ऊपर फोकस किया तब जाके एटीएम बना था। आज हम जहां भी जाते क्या करते हैं? अरे मेरे पास एटीएम है, मेरे पास एटीएम है। ड्रीम्स कैसा होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए। ड्रीम्स कितना छोटा बड़ा का कोई बात नहीं है। सर मुझे साइकिल चाहिए तो बड़ा ड्रीम आपके लिए, वो हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो भी बड़ा ड्रीम है। इसमें ड्रीम्स का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ड्रीम्स शुड बी इमोशनल होना चाहिए बस। अगर इमोशनल है तो आप ड्रीम्स अचीव कर सकता है। क्योंकि देखो मैं बताता हूं, ट्रेन का कहानी बताऊंगा तो टाइम लगेगा। ट्रेन एक बच्चा ने बनाया। पापा का जो वो खींच के लेकर आ रहा था ना, उसने सोचा पापा इतना कुछ मुश्किल कर रहा है तो मैं एक इंजन बनाऊं। वो इंजन बनाया उन्होंने। मतलब ड्रीम्स कैसे, मतलब ड्रीम्स इमोशनल होना चाहिए यार। हमारा ड्रीम्स कैसे होता है? कुछ बनाने का होता है क्या? नहीं सर मैं ये कार लूंगा, ये बाइक लूंगा, ये कपड़ा लूंगा, ये चप्पल लूंगा, ये घर बनाऊंगा। वी आर नॉट क्रिएटर, वी आर फॉलोअर। तो ड्रीम्स इमोशनल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आपका ड्रीम होना चाहिए। तो आप कितना लोगों के पास ड्रीम है? यस सर। और एक चीज ध्यान रखना, भगवान ने हमारा सोच फ्री दिया है, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। अगर आपको सोचने के लिए भी तकलीफ है तो भगवान सोचेंगे यार क्या बनाया है इनको मैं। तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। भगवान ने इतना फ्री सोच दिया है तो कितना बड़ा सोचना चाहिए? कितना बड़ा सोचना चाहिए? सबसे बड़ा सोचना चाहिए। तो उसको मैं टॉपिक लगाऊं तो एक दिन पूरा चाहिए। वो टॉपिक बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर मौका मिलेगा शर्मा सर का एक दिन ऐसा उसको क्लियरली और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर दिल्ली में भी कोई मौका मिल गया तो उसको ऊपर जयपुर में भी कोई मौका, जयपुर का सोच रहे हैं सर। कई दिन से मैं टीम के साथ आना चाहता हूं। अगर आ गया तो आप लोगों को ट्रेनिंग में क्लियरली देंगे। बड़ा सपना होना चाहिए। बड़ा सपना क्या होता है? तो 2 मिनट लेंगे सर इसमें। बड़ा सपना क्या होता है? बड़ा सपना कोई बोल सकते हैं आपका बड़ा सपना? तो बड़ा सोच, பெரிய எண்ணங்கள் யாருக்கு பாருங்க, பெரிய எண்ணங்கள், बिग सोच, बिग थिंकिंग। एनीवन? आप लोग बोल सकते हैं मैम मेरा सोच बड़ा है। क्या मैडम बोलिए आपका सोच क्या है? बड़ा है, बड़ा सोच। फाइनेंशियली फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। नहीं वो तो नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, कुछ एग्जैक्टली ये मैं करना चाहता हूँ। मुझे फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैंने, सर मैं रोल्स रॉयस कार लेना चाहता हूँ। मतलब उसी तरह एक बड़ा सपना। अगर फाइनेंशियली फ्रीडम है तो कितना पैसा चाहिए आपको? इतना पैसा चाहिए कि मैं कोई भी चीज देखूं तो मैं वो खरीद सकूं। Yes, ना तो कितना मैं कितना जेब- पैसा? मैं जेब की तरफ देखूं, ना मैं किसी पास में जो खड़े हैं उनकी तरफ देखूं। सबसे बड़ा, आप सीक्रेट का फिल्म देखा? सीक्रेट क्या बोलते हैं पता है? अगर आपने एग्जैक्टली नहीं फिक्स किया है तो आप वो अचीव नहीं कर सकता। आपको भगवान को पता है कि आपको पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए वो भी जरूरी है। कितना चाहिए? कितना चाहिए ये सवाल आता है। कितना चाहिए? हाउ मच? प्रशांत को कितना चाहिए? सर 7,000 करोड़ खरब। ये मैसेज देना है।
ये मैसेज, एक क्रिकेट मैच देने से पहले क्या बोलता है, मिस्टर दिल्ली टीम को पूछेगा, मिस्टर ऋषभ पंत व्हाट हाउ मच स्कोर यू एक्सपेक्टिंग, बोलेगा सर आई थिंक इट्स 220 230 लाइक दैट, लेकिन आता कितना 150 140 तो एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए, मुझे 10 लाख करोड़ चाहिए, अंबानी से बड़ा घर चाहिए, तो बड़ा सोचने के लिए तो हम एक्चुअली, मुझे ड्यू शॉट आने के बाद पता चला कि मेरा अंदर भी ब्रेन है। ड्यू शॉट से पहले मुझे पता ही नहीं था मेरा अंदर दिमाग है ये काम भी कर रहा है, एसएस भी कर लिया था मैंने, बट मेरा अंदर इतना ताकत, मुझे इतना दम, पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं पता था। Anyone can say big thinking about big thinking? Sir, big thinking. देखिए इंडियन आर्मी का एक सपना है, पता है? आज इंडियन आर्मी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन क्या सपना है इंडियन आर्मी का? फर्स्ट आने का सपना है यार, और क्या फर्स्ट आने का सपना है। तो हमारा सपना क्या होना चाहिए? अगर फाइनेंस फ्रीडम में आना चाहता हूं तो फाइनेंस फ्रीडम किससे? अंबानी से या अदानी से या बोलते ना कुछ लोग हैं अपना टिम कुक है या अमेजन से ज्यादा। अमेजन का आज एक सेकंड का इनकम कितना है? नेटफ्लिक्स का कितना है? थिंक अबाउट इट। क्या करना चाहता हूं मैं सर? मैं राजस्थान का जयपुर सिटी में एक BMW का शोरूम खोलना चाहता हूं। थिंकिंग बिग। सपना बड़ा होना चाहिए। मैं बताता हूं, आप जू में जाते हो, आप जू में जाके एक बंदर के देखते हो, जू में जाके एक बंदर के देखते हो, आप क्या बोलते हैं? हाय बंदर। वही जगह पे एक हाथी के देखते हो, ऐसा लगता है आपको? यार हाथी। हमारा सोच कैसे बड़ा होता है? एक चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं तो बड़ा चीज, हमेशा इंसान का थिंकिंग बड़ा चीज पे फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल लेडीज है, आप लोग ज्वेलरी में जाते हो ना, आप बड़ा ज्वेलरी को पसंद करते हैं या छोटे ज्वेलरी? बड़े को। क्रिकेट मैच देखते हैं 2020, अगर कोई बड़ा 6 नहीं है तो ना, ही इज नॉट ए बिग प्लेयर। बिग प्लेयर कौन होता है? जो लंबा 6 मारे वही बड़ा प्लेयर होता है। दिस इज द थिंकिंग, है ना? अगर हम होटल में खाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा तो हमें थोड़ा सपना बड़ा होता है, ठीक है? लिस्ट ऑफ ड्रीम शुड बी इमोशनल। उसके बाद क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, वो तो आपका अपने सिखा दिया होगा। उसके बाद आता हमारा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट इनवाइट तो मैं बता दिया। Contact invite is the source of our business. One more thing I would like to explain to everyone. Upline can help you by giving plan, follow through, meeting, seminar, training, and everything. Upline can help you. Upline एक चीज में help ही नहीं कर सकता। क्या चीज वो? Contact and invites. इसमें upline नहीं है, ये individual और कहीं। Contact invite मैं जहां भी जाता हूँ, ये सिक्योरिटी से कॉन्टेक्ट करके रखा हमने किसी के नहीं छोड़ा। ये जहाँ भी खाना देता है, जो भी है यहाँ पे, ये होटल का मालिक से लेके सबको कांटेक्ट किया हमने। हम नहीं सोचते, इंसान है भाई, दो आप इंसान है ना, तो आपको प्लान सुनना पड़ेगा। हमारा सोच यही है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ये क्वालिफिकेशन का बात ही नहीं है। हो सकता है यार अंबानी का भी क्वालिफिकेशन नहीं था, क्या पता ये बंदा कहीं तूफान कर देगा। ड्यू शॉट में ऐसे हिस्ट्री है जो स्कूल का तरफ देखा ही नहीं हो, करोड़पति बन गया ड्यू शॉट पे। आज बोलते हैं तो ड्यू शॉट एक वंडरफुल सिस्टम है। कई लोग को करोड़पति बनाया है, नॉट ओनली एजुकेटेड, अनएजुकेटेड को भी पैसा दिया है। दिस इज द वंडरफुल सिस्टम। अगर आप सोचो, आप अगर कुछ बनना है, इंडियन आर्मी में जाना है, तो आपको अलग बात, चलो आपको बस क्वालिटी का कुछ बॉडी भी चाहिए ना, हेल्थ भी चाहिए। तो ये चीज अगर यार ड्यू शॉट में नहीं था, ड्यू शॉट सबके लिए ड्यू शॉट है। सही बात। और बोलते कल मरने वाला है तो आज ज्वाइन होके मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कांटेक्ट में इतना दम होना चाहिए, ठीक है?
ओके नेक्स्ट हमारा शो द प्लान, शो द पैशन, शो द प्लान नहीं, शो द पैशन, शो द पैशन, शो द पैशन, शो द पैशन। हमारे अंदर इतना पैशन होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्लान में इतना दम होना चाहिए कि वो आपको प्रेजेंटेशन देके वो बंदा लगना चाहिए यार प्रेजेंटेशन ही ये काफी है। मैं बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन इज लाइक ए थर्मोमीटर। एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप बोलते हो मुझे बुखार है, क्या डॉक्टर आपको एकदम इंजेक्शन लगा देते हैं? नहीं, वो चेक करते हैं, वो टेटस्कोप रख के चेक करते हैं आपको कितना बुखार है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है बॉडी में, और वो थर्मोमीटर रखते हैं, फिर देखते हैं यार कितना बुखार है, ये सब देखते हैं ना। यस सर। उसी तरह वी आर डॉक्टर ऑफ ड्यूसॉफ्ट। हम चाहते हैं फील्ड में जाके जो नया जो प्रोस्पेक्ट हम प्लान करते समय वी आर चेकिंग क्या उसको सक्सेस बुखार है कि नहीं, उसके अंदर बुखार है कि नहीं, उसका अंदर सपना है कि नहीं, ये क्या इंसान है या कुछ मुर्दा है या डेड बॉडी है, इसके अंदर सपना है ही नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हमने एक मौका देने जा रहे हैं, बस हमने एक मौका देने जा रहे हैं कि उसका अंदर दम है तो वो आ ही जाएगा। अरे मुझे एक मौका दिया था, मैडम को एक मौका दिया था, आपको एक मौका दिया था, संजय शर्मा साहब को भी मौका दिया था। संजय शर्मा साहब का तो ड्रीम था, एक सपना था, इमोशनल था, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो उसी तरह आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, बस आपको प्लान करने का। जो भी इंसान मिला है उसके साथ 20 मिनट 30 मिनट टाइम निकाल, पता चल जाएगा 20 मिनट के बाद क्या है। इंडिया मैं बताऊं, जलंधर का कहानी बताऊंगा तो आपको पता नहीं। एक बार हमने ऐसे इंसान को पकड़ के लेकर आ गया था कि वो बैठा प्लान कर रहे थे, हम बैठ के ऐसे हम प्लान कर रहे थे सर, ये चेयर देना, एक सिक्योरिटी को पकड़ के लेकर आ गया। एटीएम का सिक्योरिटी को पकड़े, एक बंदा राजस्थान का ही है, राजस्थान का एक था, एक हमारा एक राजेंद्र था, मेरा एक एयरफोर्स का बंदा था। उसने क्या किया, उन्होंने मिलके एक सिक्योरिटी का प्लान करके लेकर आ गया। उन्होंने कांटेक्ट, उसने प्लान, हम ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, सारे प्लान दे दिया उसको, कोई उसको फेस में से कोई रिएक्शन नहीं है। लास्ट में उसे हम पूछ रहे हैं, सर आपको कौन सी पार्ट अच्छा लगा, एजुकेशन पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, दोनों अच्छा लगा? उसने बाद में पता चलो वो दारू पिया हुआ उधर हो गया। हम इतना कुछ हम किसी के नहीं छोड़ता था, किसी को पकड़ प्लान करता था। हमने प्लान ऐसे ऐसे लोगों को किया है, वो सब इसका अंदर भी कोई कटिंग कराते हैं, किसी के नहीं छोड़ता। इंसान है तो प्लान करो, उसको क्वालिफिकेशन मत दे। ये था हमारा शो द प्लान का फैशन। फैशन करते समय इतना कुछ बोल देता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर इतना स्किल्स बढ़ेंगे आपको, स्टेज स्किल्स वगैरह। आईआईटी भी नहीं सिखाते यार इंडिया में, जो आईआईटी एजुकेशन है ना, वो भी स्टेज स्किल, स्पीकिंग, पर्सनैलिटी, पीपल स्किल, ये सब स्किल नहीं सिखाए जाते हैं। आज आईएएस की भी पढ़ाई होता है, सिर्फ पढ़ाई होता है स्किल्स का, और नेचुरली जो हम पीपल्स के साथ जाकर मिलकर जो स्किल्स लेते हैं ना, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाते ड्यूसॉफ्ट के अलावा। देयर इज नो इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड इन इंडिया व्हिच इज सीकिंग प्रैक्टिकली स्टेज परफॉर्मेंस। इतना मौका किसी का नहीं मिलेगा। आज किसी का ऐसे या नहीं मिला, माइक नहीं मिला, सबको मिला। अरे मैं स्कूल में पढ़ाई किया, मुझे पता सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। बस अगर ड्यूसॉफ्ट में पैसा का बात करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, अगर ड्यूसॉफ्ट स्किल का बात करेंगे तो स्किल सबको मिलता है ड्यूसॉफ्ट में। और जो भी ड्यूसॉफ्ट में 3 साल काम कर लिया तो वो बंदा वही रिलेटिव में काम करता है, वही रिलेटिव कोई भी काम जाके बाहर और काम नहीं करेगा, और कंपनी में जाकर भी काम करेगा, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग ही करेगा या कोई कुछ मार्केटिंग करेगा। इतना स्किल्स बढ़ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। दिस इज द ओनली, मैं इतना एसएसबी पढ़ा हूं, एसएसबी में हमें बस मेंटली सिखाते हैं, फिजिकली नहीं सिखाते हैं।
यहाँ ड्यू सॉफ्ट में मेंटली सिखाया जाता है. दिस इज द very proud. I'm very proud to be Due Softian because we are learning mentally here. Okay, that is a passion होना चाहिए ड्रीम अपना पैशन प्लान में. सबसे ज्यादा फॉलोअप में, नेक्स्ट मैं फॉलोअप में आ गया हूं. फॉलोअप में, ओके, फॉलोअप में सबसे ज्यादा सवाल क्या आता है? फॉलोअप लेना पर क्वेश्चन की जरूरत जास्ती. मनी 99% एक ही सवाल आता है, मेरे पास पैसा नहीं है. ये कोई सवाल है? उस समय आप कैसे बोलना चाहिए? आपने बैठ के कैसे करना चाहिए? आपका मुंह में उस समय ऐसे, ये तो ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, इतना स्माइल आना चाहिए. सर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपको पता है इंडिया में 97% पीपल के पास पैसा नहीं है. मेरा पास भी नहीं है और आपका पास भी नहीं है. चलो हम मिलके पैसा बनाएंगे, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं. ऐसा बोलो, फिर कुछ भी नहीं बोलेगा. वो आपके सामने जो बैठा ना बंदा, उसका सवाल ही नहीं है. उसके बाद इतना हंस के आपको आंसर देना है. आप नहीं बोल सकते यार पैसा नहीं है, चलो चलते हैं वापस. खुश हो जाना है आप मिल गया बंदा, क्योंकि ये सवाल हमने भी बोला है. ऐसा कोई है जो सवाल में नहीं बोला है? मैडम आपने सभी ने बोला है. झूठ बोला आपने. क्या बोला आपने? मेरे पास पैसा नहीं है. वही झूठ वो बोल रहा है. इसका मतलब वो ट्यूशन में जाएगा. ठीक है. और उसके बाद क्या बोलेगा कोई? उसके बाद दूसरा सवाल क्या है? यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है. आप बोलना कसम खा के बोल रहा हूं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था. मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था. ये संडे एक मीटिंग है, ये लोग पास आ जाओ, उसके बाद अब डिसीजन लो. इंटरेस्ट आ जाएंगे. अच्छा मुझे भी ये लगता था कि ये काम ये ऐसा है, इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं. उसको बोलना, आपने नेगेटिव बात भी करना वहां पे. मैं बिल्कुल इसका ये सोचा था, वैसा सोचा था, मैं ये नहीं. लेकिन बाद में पता चला इतना बड़ा सिस्टम इंडिया में कोई है ही नहीं. आप मीटिंग से उस समय उसको इन्वाइट करना है. देखो मैं बताता हूं, मैं सिंपली एक सवाल सिखाता हूं. मैं स्पेशली मैं इन टीम को तो मैं ट्रेनिंग करते रहता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं. बोल कहते सोलीपुर तक बोलना है. ओके वाह. मैं यहाँ पे राजस्थान और गुजरात टीम को मैं एक बात बताना चाहता हूँ. सबसे पहले चीज मैं क्या बोलता हूँ पता है? कोई नेगेटिव बोले इंटरेस्ट नहीं है बोलते हैं. यार पता है ड्यू सॉफ्ट को 22 साल हो गया. 22 साल हो गया और 65 लाख पीपल ज्वाइंड. आपको पता है सिंगापुर का पॉपुलेशन 40 लाख है. 40 लाख है. और ड्यू सॉफ्ट का पॉपुलेशन कितना पता है? 65 लाख पीपल और ट्राइंड. आप सोचो कितना बड़ा सिस्टम है ये. आप सोचो कितना बड़ा सिस्टम है ये. तो बंदे के पास सवाल नहीं होगा. आप जो भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछते ना, वो बोलते कि सर इसमें पढ़ाई कैसा होता है? सर इसका 22 साल एक्सपीरियंस हो गया. 65 लाख स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग. फिर आप सोचो कितना हो सकता है, कितना बढ़िया हो सकता है. तो बढ़िया होगा तब तो इतना लोग हो रहा है. फिर वो बोलता है सर ये मुझे कैसे काम करना पड़ेगा इसमें? सर आप इसमें 22 साल सर्विस हो गया. 22 साल हो गया ड्यू सॉफ्ट को और 65 लोग ट्राइंड डेज में. आप सोचो इस कैसे हो सकता है? मतलब आपका सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए. आपका सवाल का जवाब आप एजुकेशन का देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता. हम कई लोग क्या करते हैं, अगर एजुकेशन को लेकर बैठ जाते हैं या कुछ और, नॉट सेटिस्फाई. बिकॉज एक एलकेजी बंदा जाता है ना, उसको पता नहीं एबीसीडी क्या होता है. तो एलकेजी बात है, टीचर को मैडम टीचर बोला था, सो मेनी मैडम से टीचर, मैडम को पता है. जब स्कूल में सिखाते हैं ना, जो बच्चा नहीं जानते उसको सिखाते हैं. लेकिन हम ऐसे नहीं है ड्यू सॉफ्टियन, जो जानते हैं उसको सिखाना चाहते हैं. फर्क पड़ता है. पता है कुत्ते का जो पिल्ला बोलता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चे. उसको पालना आसान है, लेकिन कुत्तों को पकड़ के पालना मुश्किल है. वो काट देगा.
क्योंकि उसको दांत बड़ा हो चुका है। वो पिल्ला कुछ नहीं करेगा, वो बच्चा कुछ नहीं करेगा, उसको पता है कुछ नहीं पता मुझे। सो देयर इज सो मेनी डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रंस एंड adults. We are giving plan to adult people more than 18 years and old. So they will ask a question because their brain is working, they are thinkable, they are speakable. So उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी देखा है। So हम समुदाय में जब जाते हैं, फील्ड में जब जाते हैं, तो there are so many things to see and watch and focus and learn and to solve. तो फील्ड में हम जब काम करते हैं, जो जानते हैं उसको प्लान करते हैं। जो मैडम ने बोला था यहाँ पे सी है और जैसे मैं एडवोकेट हूँ, सारे एयरफोर्स में कितना नॉलेज, एयरफोर्स पीपल, हमें तो इंडियन आर्मी में गाली के साथ शुरू होता है बात, नेवी का, और नेवी का तो बिल्कुल अंग्रेजी ही बोलना पड़ेगा, हिंदी तो चलता ही नहीं वहां पे। आई एम श्योर हिंदी एयरफोर्स में और नेवी में हिंदी नहीं चलता, हिंदी भाषा ही नहीं है वहां पे। only one language, that is इंग्लिश। कुछ लेना सर से कितना नॉलेज होगा मुझे नहीं पता। ये नेवी का सर ने कैसे डिसीजन लिया सर आपने ड्यू शॉट में? मुझे सच में कुछ हमारा अपलाइन नारिकोट सर है, उन्होंने भी डिसीजन लिया था। इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, इफ यू स्पीक विथ हिम यू कांट स्पीक विथ हिम, उतना उनका सर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता आप। उनका सवाल ऐसे होगा, उनका एक सोच ऐसा होगा, उनका एक चुप रहना हुआ, ठीक है। मैं बोलता कुछ देर जब नारिकोट सर का रहता ना, राजेंद्र नारिकोट सर जब ज्यादा सवाल होता ना, सर कुछ खाते हैं कुछ खाने चलते हैं तो अब ये डाइवर्टिंग, उनके साथ बात कौन करेगा यार, बहुत नॉलेजेबल है, हम सोल से रहे, हमें नॉलेज कम होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉलो अप में जब जाते हो ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि पीपल आर वेरी क्लेवर एंड वेल एजुकेटेड, तो हाउ टू मैनेज देम, ट्रेन योरसेल्फ, यूज योर अपलाइन, सवाल करो अपलाइन से, ट्रेनिंग अटेंड करो, सारे आ जाएंगे। तो फॉलो अप दमदार होना चाहिए, नो मनी नो इंटरेस्ट, सर मुझे ये है वो है। अब मैं एक मैजिक बताना चाहता हूं। मेरा 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना हो गया था, सारे घर बैठा है, मैंने घर के ऊपर बैठा हूँ। लास्ट ईयर आया, मैं एक घर बनाया था बैंगलोर के पास, मैंने 60 लाख का, वो घर के ऊपर मैं बैठा हूँ। वहाँ पे एक मेरा पड़ोसी था, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, घर पे बैठ के काम कर रहा है, घर पे बैठ के काम कर। उसका शादी होके कम से कम 4 साल हो गए, उसको बच्चा नहीं था, वो ट्रीटमेंट करा रहा था। मैं बोला क्या हो रहा है, तो अचानक उससे बात करने का मौका मिला था, वो घर में बैठा। तो ये फॉलो अप को मैं बात कर रहा हूँ। फिर जब वो मैं जो उसको क्या किया, उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? सर मैं ऐसे एक ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन अकेडमी में काम कर रहा हूँ, आप आ जाओ शाम को। उसको मेरे घर आया था, मैं प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद उसने बोला, मैं ड्यूसॉफ्ट के मैच को अगर बोला था सर ये पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, उसको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको देखना, और 1-2 साल का तो बच्चा भी हो जाएगा ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन करेंगे। तो मैं ऐसे मोटिवेशन कर दिया था। क्या कर रहा? दो चीज में डू आउट करने का एक मुझे एक जालंधर में एक मेरा अभी 2020 में उस समय में ऐसे मोटिवेशन हो गया था मुझे। मैं वो लड़का को मैं वो भी बता दिया कि आपको शादी बच्चा नहीं है, अभी आप ड्यू शॉट में ज्वाइन करो, बच्चा भी हो जाएगा आपको। वो एक्सीडेंट होकर मुझे 30,000 रुपये पैसा भी दे दिया। 30,000 रुपये पैसा भी दे दिया। और मुझे नहीं पता क्या हुआ है, 2021 में उसको एक लड़की हुआ है। वो ड्यू शॉट में एक एडमिशन भी नहीं किया, वो अभी तक 4 नहीं किया सर उसने, लेकिन वो खुश है। मैंने बोला ये 30,000 है, 30,000 में बच्चा हो गया आपका। 30,000 में बच्चा हो गया, मोटिवेटेड हो गया। जालंधर का बात फाइंड अप करता हूं मैं। जालंधर में क्या हुआ, एक पंजाबी था, पंजाबी मोटा होता है, मुझे मोटिवेशन ड्यू शॉट करने का मोटिवेशन क्या मिलता मैं बताता हूँ। एक ईएमए के था सर वो, उन्होंने आके मुझे जब ज्वाइन किया था उसने बोला कि मैं ड्यू शॉट मुझे क्या देता मुझे नहीं पता, लेकिन ड्यू शॉट की वजह से मुझे इंडियन आर्मी में प्रमोशन मिला।
आप मान सकते हैं ड्यूसॉफ्ट का इंडियन आर्मी का प्रमोशन का क्या लेन देन? मोटा सर बंदा डीपीटी नहीं भाग सकता है, सारे उसको बोला तुम मोटा है, तुम लायक नहीं है, तुम जेसीओ नहीं बन सकता है, तुम रिटायर हो जाओ, तुम लायक नहीं है, लायक नहीं है, ऑफिसर बोल दिया तुम लायक नहीं है, सब बोल दिया तुम लायक नहीं है। लेकिन ये बंदा गलती से ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन हो गया, ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन हो गया। इसने जलंधर पंजाब में अपना इंद्रप्रस्थ होटल में मीटिंग में चला गया, उसमें उसको बोला एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप जो सोचते हो वो करते हो, वो होता है। वो बाजवा सर आगे वहां पे चीफ गेस्ट हमारा, उसने बोलते एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो सरदार ने सोच लिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल है तो क्या 5 किलोमीटर में नहीं दौड़ सकता हूं, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता हूं मैं। उसने बोला वो मीटिंग के बाद उसने गया, दूसरा दिन भागा, उसने लाइफ में सबसे बड़ा मुश्किल सब भागना 5 किलोमीटर, उसने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया और जेसीओ बन के आके हमें मोटिवेट किया कि आज मैं ड्यूसॉफ्ट, अगर इंडियन आर्मी में प्रमोशन मिला है वो इंडियन आर्मी की वजह से नहीं, ड्यूसॉफ्ट की वजह से। क्या ये तो मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मोटिवेशन से क्या नहीं हो सकता सर। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ड्यूसॉफ्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ड्यूसॉफ्ट। इनको हिंदी समझ में आ रहा है इनको भी हिंदी समझ में आ रहा है, पूरी दिला एवरीथिंग से आपको लग रहा है, वो फेस से लग रहा है। सब सीख लिया सर हिंदी इन्होंने। नहीं सर ऐसा हुआ, मेरे डोमिनेट टुमैया थे, मेरे स्पॉट में डोमिनेट और टुमैया थे दोनों तमिलनाडु का, मेरे हिस्से में पड़ गए। तो पहले मैं उनको हिंदी सिखाता, हिंदी मैं डोंट वरी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो बोलते हैं सर सही हिंदी बोला करो, हमसे बोला सही हिंदी बोला करो। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं मार्केटिंग के बारे में एक बोलना चाहता हूँ कि मार्केटिंग क्या होता है, हमें क्यों ये काम करना चाहिए, बोलो मोर नॉलेज करवाएंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा अरे मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। अभी ये आ जाओ, ये है कंपनी का, एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं, एक कंपनी मतलब एक हीरो होंडा का कंपनी बनाना चाहते हैं। ये हीरो होंडा का सीईओ है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर या कुछ भी, या मैनेजर या मालिक या कोई भी हो, ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं। ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसको क्या चाहिए, एक मैनेजर चाहिए। तो इसको मैनेजर बना लिया इसने, इसको मैनेजर बना लिया। तो इन लोग एक कंपनी का एम्प्लॉयज है, एक कंपनी का एम्प्लॉयज है, उन्हें मुन पेरवाऊंगा ये एक कंपनी का, ये जो हीरो होंडा का शोरूम इसने लिया, फ्रेंचाइज लिया इसने, मान लेना या गोवा का ये शोरूम का ये मालिक हो गया, ये कंपनी का सीईओ है, ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉय है। और हिंदी बताऊं, ये फ्रेंचाइज लिया और इन्होंने ये बाइक को बेचने वाला है, ये बाइक को बेचने वाला मार्केटिंग पर्सन है, ये जाके बाइक को बेच के आते हैं। अब आप देखो ये कंपनी चलता कैसे है, ये कंपनी कैसे चलता है कि ये लड़का, ये जो मालिक है ये कंपनी को ये कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ये चला रहा है कंपनी को, ये एम्प्लॉयज है। अभी ये बोलता है कि मैं हीरो होंडा में नौकरी कर रहा हूं, ये हीरो होंडा का फ्रेंचाइज लिया है, ये हीरो होंडा का मार्केटिंग पर्सन है, जैसा अपना ये अपना प्रशांत कर रहा है। अभी ये मार्केटिंग पर्सन है। अभी बताओ यहां से मनी कहां से जनरेट होता है, यहाँ इससे जनरेट हो रहा है या इससे जनरेट हो रहा है, या इनसे जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट हो रहा है, इससे जनरेट हो रहा है। कहां से जनरेट होता है, मार्केटिंग से जनरेट होता है। मार्केटिंग से इससे पैसा आता है, इससे इसको पैसा जाता है, इससे पैसा देता है, फिर इनको पैसा देता है। लेकिन हम कोई लड़की शादी करना चाहता है तो अभी लड़की इसको देंगे और इनको देंगे, ज्यादा से ज्यादा इनको लड़की देते हैं, इनको लड़की नहीं। तो मार्केटिंग पर्सन को क्या करते हैं, इनकार करते हैं। लेकिन ये आता है क्रिएटर ऑफ एवरी बिजनेस। सही बात है, ये एक्चुअली इनका बिना कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये कंपनी कैसे करते हैं, इनको हटा देता है, ये कंपनी में मार्केटिंग पर्सन नहीं चाहिए। अभी इसका भी कोई वैल्यू है, नो सर, इसको कोई वैल्यू है, नो, इनका कोई वैल्यू है, नो, इनका कोई वैल्यू है, नो, इनका कोई वैल्यू है, नो वैल्यू। अगर इन लोग नहीं है तो ये कहीं कुछ भी कर लेगा, लेकिन इन लोग काम नहीं करेंगे तो इन लोग
कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। ये कंपनी चलता है सिर्फ पैसा ट्रांसफर, मतलब क्या होता है मार्केटिंग। अभी ध्यान रखना मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग की वजह से ही चलता है कंपनी। अब अंबानी इतना करोड़ रुपए कमा रहा है सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। लास्ट में मैं यही वाइंड अप करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू बिल गेट्स को जानते हो ना? ओके। IBM हमारा प्लान में भी आता है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे बड़ा मार्केटिंग कंपनी है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट हो दूसरा देश में बेचने जाते हो तो IBM से कांटेक्ट करके बेच सकते हो। ओके, अभी मैं बताता हूँ। बिल गेट्स का कॉलेज से वो ड्रॉप आउट हो गया था। ही वाज फेल्ड इन कॉलेज। उसका फ्रेंड था पॉल एलन। उन्होंने क्या किया कि कंप्लीट हो गया कॉलेज, ग्रेजुएशन था, कंप्यूटर मास्टर था उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। वो सॉफ्टवेयर था OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज होता है। विंडोज से वो MS पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड ये चीज था। ये तो उसने क्रिएट हो गया था, लेकिन उसने किसी को भी दिखाया तो कोई ले नहीं रहा, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा। कम से कम 1500 लोग से ज्यादा उसने प्लान कर दिया। वो डर गया कि यार मैं क्या बना दिया, ये नहीं चल रहा है तो मेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। तो उसने बिल गेट्स को बुलाया। ध्यान रखना मैं ये चीज को, बिल गेट्स को बुलाया कि यार बिल गेट्स देखो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई भी नहीं ले रहा है। आप ऐसा करो, आपका पास एक स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, आप वो प्रेजेंटेशन मैं देता हूं ना, कोई भी नहीं कर रहा है, मतलब इतना ये कर। आप एक काम करो, मैं एक मेल उसको होता नहीं पता मुझे, मैं एक मैसेज किया है IBM में आपका इंटरव्यू है। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है, मैं नहीं आ रहा हूं, मेरा नाम पे आप चले जाना। आप जाके इनको ये प्रेजेंटेशन कर देना कि ये OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में ये करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलता है, और MS वर्ड पावर पॉइंट, और इसमें हम पूरा ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। ये आपको IBM को दिखाना, और ये सारे वर्ल्ड को वो भेज देगा। और आपको कोई पूछेगा तो ये बनाया किसने पूछा तो आप बोलना मैं बनाया, बता देना। बिल गेट्स को इसने बोल दिया, पूरा राइट्स दे दिया बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने IBM के पास गया, IBM के पास जाके उसने प्रेजेंटेशन किया तो IBM खुश हो गया। IBM उसको टेस्ट किया तो वो टेस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, उसका डिमांड ज्यादा था। IBM ने बिल गेट्स को बोला, बिल गेट्स ये मुझे चाहिए। कितना चाहिए? उसने बोला अगर इंडिया में पूरा या वर्ल्ड पूरा बोले कितना ऑफिस होगा, लाखों करोड़ों में होगा, तो मुझे उतना चाहिए तो फिर बहुत पैसा लगेगा। IBM ने पूरा पैसा देने के लिए रेडी था, मिलियन पैसा, मतलब मिलियन करोड़ देने के लिए रेडी था। बिल गेट्स को समझ में आ गया क्या हो रहा है। उनको पता नहीं था ये पॉल एलन का, उनको इतना पता बिल गेट्स का। बिल गेट्स का पूछा इसने किसने बनाया, बिल गेट्स ने मैंने बनाया। ठीक है, अब फिर तो ऐसा करते हैं, फिर बिल गेट्स ने बोला ऐसा करते हैं, पहले मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी खोलता हूँ, उसको एक मैं CEO हो जाता हूँ, फिर मैं आपको राइट देता हूँ। बिल गेट्स ने क्या किया, पॉल एलन को बताया नहीं, उसने खुद का कंपनी खोला, खुद का कंपनी से इसने पॉल एलन को मैनेजर बना दिया, उसे एम्प्लॉय बना दिया। फिर एम्प्लॉय बनाने के बाद उसने पॉल एलन को बोला इतना सैलरी है तुम्हारा, और तुम ये जो OS बनाया ना, ये मुझे इतना OS चाहिए, जल्दी बना के दे दो। वो पॉल एलन खुश हो गया कि मुझे बस मैं बैठ के काम करूं, मुझे पैसा जितना चाहिए दे दो, आप उतना दे दो और मैं बना के दूंगा। उसने जितना बना के देता रहा। बिल गेट्स क्या किया, IBM को पास करते रहा, IBM वर्ल्ड पूरा उसको मार्केटिंग किया, और मार्केटिंग करने के बाद एक दिन बिल गेट्स ने बन गया नंबर 1 करोड़पति बन गया। तो बिल गेट्स से पूछा कि एक इंटरव्यू था, उसमें पॉल एलन भी था और बिल गेट्स भी था। पॉल एलन को बिल गेट्स ने सारे सवाल करा, सर ये कैसे हो सकता है, आपने कुछ भी नहीं बनाया फिर भी आप करोड़पति कैसे बन गया, बनाया कुछ और ने, आपने तो भेजा है सिर्फ, आपने कैसे करोड़पति बन गया? ऑफ कोर्स राइट, आई वाज ड्रॉप्ड आउट इन माय कॉलेज and my friend Paul Allen is the gold medalist and today he is the employee of Microsoft and today I am the owner of Microsoft because I did marketing only। marketing करने से करोड़पति बन सकते हैं। Thank you so much।